Hello students, welcome to Aptitude Wala Maths. We are going to discuss fifth and final set of DILR of slot 3 CAT 2020. I have already discussed 4 sets. This is the final set. Now this is again a 6 question set. We have discussed one 6 question set previously, and there we had told you very clearly that no, many students fell in the trap, thinking that no, I should attempt a 6 question set, because if I am able to analyze the data properly, if I am able to understand the question properly, I'll be able to answer 6 questions straight away. So this is more advantageous, more rewarding compared to a 4 question set. But as we had discussed earlier, this was actually a trap in some sense, because 6 question sets were comparatively difficult than a 4 question set. So CAT had put had rewarded those people who were daring, who were more risk taking, vis-a-vis those who were less risk averse. So if you are less risk averse, you will opt for a 4 question set, and those will be relatively easier to solve, but again you will be able to answer only 4 questions. However, if you go for a 6 question set, then obviously you're more risk taking, because you are attempting a question where you will have more no six you will be able to answer 6 questions, but then the catch was that it was on a difficult side. So there was a trade-off. You had to either go for less rewarding but simultaneously less difficult, compared to a more rewarding and but more difficult set. So this is how CAT played with the psyche of the student in DI lab this year. Okay, not every set was having equal number of questions, and that played some role in question selection also for many students. Okay, let us go through the question first. Now, this is a games and tournament question, a very typical routine kind of a thing. In games and tournament, you must have seen these types of questions in your mocks, in your study material, in whichever institute you might be preparing with, associated with. They would have given you many questions on games and tournaments, either in their practice material or in their mocks. So this is one of those games and tournament set. Let us go through it first. The question says the high-low game is a four-player game played in 6 rounds. So there are 4 players, they play 6 rounds. In every round, each player chooses to bid high or low. So there are two bid options. Either player will choose bid high or bid low. The bids are made simultaneously. All right. If all four bid high, then all four lose 1 point each. Wonderful. So there is a scoring scheme given here. The scoring scheme is that if everybody bids high, then all will lose 1 point. Okay, all will lose 1 point. Then it says that if 3 players bid high and one bids low, then the player bidding high gain 1 point and 1 point each, and the player bidding low loses 3 points. Okay. So if if 3 highs are there and one low is there, then the scheme is that +1 +1 +1 and -3. This is how it will be. Then if two players bid high and 2 players bid low, then the player bidding high gain 2 points each, and the players bidding low loses 2 points each. Okay. So if it is high high low low, then it will be 2 2 -2 and -2. Okay. Then next is, if one player bids high and 3 players bid low, then the player bidding high gains 3 points and the player bidding low lose 1 point each. Okay. So if it is HLLL, then the scheme is 3 -1 -1 -1. Okay. And finally, if all four bid low, then all four gain 1 point each. So if everybody bids low, then they will all gain 1 point, +1 +1 +1 and +1. So this is how scoring happens in this game, in this tournament. All right. Let us move ahead. 4 players, Arun, Bankim, Charu and Deepak, we'll call them ABCD, played the high-low game. Following facts are known about the game. Okay, so what are the facts here? At the end of 3 rounds, Arun had scored 6 points, Deepak had scored 2 points,
Bankim and Charu had scored -2 point each. Okay, so 6, 2, and then -2, -2. So there's not enough sufficient place here to write. So we'll do the analysis on the next page. So the question says that at the end of third round, this is my third round. So at the end of third round, the scores of A, B, C, and D are respectively 6, 2, -2, and -2. So this is the score at the end of this is the score at the end of third round. Okay, all right. Then at the end of sixth round, second point. At the end of 6 rounds, Arun had scored 7 points, B and D -1 points, and C -5 points. Okay. So at the end of sixth round, A 7, BD -1. So at the end of sixth round, A, B, C, and D, the respective scores are 7. This is -5. I think these two are -1 and -1. Let me cross check once more. 7, B and D -1, C -5. 7, B and D -1, C -5. So this is the score at the end of sixth round. Okay. Third point, Deepak's score in third round was less than his score in first round. So third is less than first, but was more than 2. So 2 was the least of the lot. So you can say, write it here also. Deepak's score in second round less than Deepak's score in first round less than Deepak's score in third round. Let me check. क्या कहता है Deepak scored in third round is less than his score in first round. Third round is less than first round. Okay. So this is third round. Third round is less than first round. Deepak's score in third round was less than his score in first round, but more than his score in second round. More than his score in second round. More than second round. This is not done. So Deepak's score in third round is less than first round, but more than second round. So this information is 2, 3, 1. Okay, so this is how it is. More than second round. So 2 is least, 3, and then 1. Okay, fourth point. In exactly 2 of the 6 rounds, Arun was the only player who bid high. So क्या कहता है कि जो 6 राउंड में से 2 राउंड ऐसे हैं जहां पे अरुण ने सिर्फ हाई, अरुण ही एकमात्र प्लेयर ऐसा है जिसने हाई बोला है, यानी बाकी 3 प्लेयर ने लो बोला है. ठीक है, ऐसा दे रखा है. सो वंडरफुल इंफॉर्मेशन. ए बी सी डी में इस 6 राउंड में से 2 बिडिंग ऐसी हुई होगी जिसमें से अरुण ने हाई बिड किया है और बाकी सभी ने क्या बिड किया है, लो बिड किया है. यानी कि यहाँ पे स्कोर क्या होगा, जब एच बिड होता है तो क्या होता है, +3, और बाकी लोग का क्या होता है, -1. सी है, जब एक एच होता है और 3 लो होता है तो जो एच बिड करता है उसको 3 मिलता है, जो लो बिड करते हैं उनको -1, -1, -1 मिलता है. सेम हियर, ए ने हाई बिड किया, बाकी 3 ने लो बिड किया, तो ए को मिलेगा 3 और बी और सी और डी को मिलेगा -1, -1 और -1. सो ऐसा कितनी बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा. देयर आर 2 instances where A is the only player to have bid for H, and rest all have bid for L. Okay, all right. सो ये भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन हमें दिया होगा. दिस इज अ क्रूशियल वन. सी, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, देयर विल बी मेनी इंफॉर्मेशन गिवन इन DI सेट. नो, बट उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो पढ़ते ही लग जाता है या थोड़ा एक सेंस बनता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होने वाला है. तो द प्रॉब्लम क्रैकिंग द पजल hinges on this vital set of information. So you should have the ability to identify that vital set of information. That will not come naturally, that will come only by practice, sheer practice. Therefore practice pays massively in India. It pays big time. It's absolutely no two ways about it. It's perfectly correct to say that one who practices will not just be able to solve the question, but also solve the question much faster because he knows where to start. Consider it like a locksmith. एक चाबी बनाने वाले को पता होता है कि ताला खुलनो, जब चाबी गुम हो गया तो कहाँ टैप करूंगा ताला को, कहाँ हैमर मारूंगा कि ताला खुल जाएगा.
जो अनाड़ी होगा, जिसको नहीं पता होगा, somebody who is naive in opening द लॉक विदाउट की, वो एकदम नो हैमरिंग करता रहेगा, फिर भी ताला टूट जाएगा, खुलेगा नहीं जल्दी, नहीं, लैच टूट जाएगा, ताला नहीं खुलेगा। तो ऐसा इसलिए बिकॉज उसको पता नहीं है। सो यू कैन ड्रॉ दैट एनालॉजी हियर ऑल्सो। तो अगर आपको पता है कि कौन सा वाइटल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप उसी पे जाके अटैक करोगे, पजल जल्दी खुलेगा, पजल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, ये क्लू नहीं लग पा रहा है कि कौन सा इंफॉर्मेशन इतने में से सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप कहीं और से स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल वांडर थ्रू दिस नो maze of the information provided, and at the last, or after too much of time wasted, you'll realize that अच्छा मुझे यहाँ से करना चाहिए था। So that's the beauty, that's the advantage that those who practice more gets over the rest. So it is very vital that if you are preparing for CAT, practice a lot as far as DILR is considered, and practice variety, not just one type of question, but variety of questions. Okay, let us come back to the question here. So ये समझ में आ गया। ए को ए दो बार ऐसा हुआ है, दो राउंड ऐसे हुए हैं जिसमें ए ने एच बीट किया है और बाकियों ने लो बीट किया है, मतलब कि ए को 3 मार्क्स मिला है और बाकी लोगों को 3 पॉइंट मिला है, और बाकी लोगों को -1 और -1 मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस डू द एनालिसिस नाउ। कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप रियलाइज करेंगे कि आ, अगर सारे प्लेयर ने एक जैसा बिड नहीं किया, यानी कुछ लोगों ने हाई बिड किया है, कुछ लोगों ने लो बिड किया है, तो उन सबका स्कोर का सम हमेशा जीरो आएगा। देखिए HHHL में क्या हो रहा है, +1 +1 +1, तो +3 -3 कितना आएगा, 0। HHLL 2 to 4 -4, 4 -4 0। HLLN तो 3 -3 कितना हो गया, 0। When players have bid differently, the sum of their score is always 0. But when players bid same option, जैसे यहाँ पे देखिए HHHH तो -4 आ रहा है, LLLL तो +4 आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बिकॉज इससे हमें ये समझ में आएगा कि एट एनी स्टेज से, मान लीजिए कि थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड तक में मान लीजिए कि सबका प्लेयर्स का स्कोर का सम आ रहा है 8, कितना आ रहा है, 8। इसका मतलब ये हुआ कि एल वाली बिडिंग दो बार हुई होगी, बिकॉज एक बार सबका +1 +1 +1 +1 होके 4 हो जाएगा, दो बार होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे अगर सबका स्कोर का सम अगर 4 रहता है, इसका मतलब एक बिडिंग कैसी हुई है, एल। ये समझ में आ रहा होगा। अगर सबका स्कोर का सम 0 है, इसका मतलब है कि ऐसी वाली बिडिंग हुई है, HHHL या HHLL या HLL वाली, ऐसी वाली बिडिंग हुई होगी, तभी तो सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे वहीं से प्रॉब्लम को अटैक करते हैं। इसका सम लीजिए, इसका सम क्या आएगा, 6 -2 -2 2, तो ये आ जाएगा 4। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 6 -2 4, सो आई नो द सम हियर इज 4। अगर सम 4 है, इसका मतलब है कि ऊपर में ये पहले 3 राउंड में एक राउंड ऐसा जरूर हुआ होगा जब सबको एक एक पॉइंट मिला हो। यानी वो कैसा हुआ होगा, लो 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 वाला। सो एल 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 वाली एक बिडिंग हुई है जहां सबको क्या मिला है, एक एक पॉइंट मिला है, एल 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 एल। एक बिडिंग तो ऐसा हुआ ही हुआ है, ये हमें पता चल रहा है बहुत क्लियरली। ठीक है, नाउ from the end of third round to the end of sixth round, if you see, from end of third round to end of sixth round, if you see, sum of score has changed। यहाँ पे sum of score 4 था, यानी कि 7 -1 -5 -1, तो ये भी -7, 7 -7, the score now is, sum of score now is 0। इसका मतलब ये हुआ होगा कि यहाँ से सम घट के 0 हो गया, यानी कितना घटा, -4 घटा। -4 कब होता है, जब सभी ने हाई 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 बिड किया है। देखिए जब सबने हाई बिड किया है, जब सभी ने हाई बिड किया है, तो सबका -1 -1 -1 -1, यानी स्कोर क्या हो जाएगा, -4। सो वी नो कि इधर में एक बिडिंग कैसी हुई होगी, एच 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 और एच वाली बिडिंग एक हुई है। तो सभी का स्कोर -1 -1
-1 और -1 हुआ है, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ एक और चीज देखिए कि ए का पॉइंट कितना है एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड। ए का पॉइंट कितना है 6। सो लेट अस राइट इट डाउन हियर। ए का एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टोटल पॉइंट है वो कितना है 6 है। 6 है। नाउ ए को 6 पॉइंट में से एक बार तो ए 1 ही आया है, बिकॉज इन 3 राउंड में से, पहले 3 राउंड में से एक राउंड एल 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 वाला हुआ है, यानी सबको एक एक पॉइंट मिला होगा, तो ए को भी एक पॉइंट मिला होगा। सो किसी एक राउंड में, किस राउंड में नहीं पता, बट एक राउंड में ए को कितना मिला है, एक पॉइंट मिला है। और टोटल 3 राउंड में उसको कितना पॉइंट मिला है, 6 पॉइंट मिला है। इसका मतलब है कि 2 और जो राउंड हुए हैं उसमें 5 पॉइंट मिला होगा। तो 5 पॉइंट कैसे मिलेगा, 5 पॉइंट 2 और 3 से। इसका मतलब एक बार उसको 2 मिला है, एक बार उसको 3 मिला है। समझ में आ रहा है, एक बार उसको 2 मिला है, एक बार उसको 3 मिला है। सो 1 + 2 + 3 सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सम इज 6। यही हुआ होगा, यानी कि ए का एक बार +1 है, तो एक बार इस 6 में से एक +1 से आया है, एक +2 से आया है, एक +3 से आया है। और +3 वाला हमें पता है, 2 राउंड ऐसे हुए हैं जिसमें ए को +3 मिला है, तो इधर वो राउंड एक इधर भी होगा। सो आई नो कि एक राउंड ऐसा भी हुआ होगा एच एल एल और एल। तो यहाँ +3, यहाँ पे -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। एक राउंड ऐसा भी हुआ होगा। दिस 2 राउंड तो क्लियर हो गया। कौन सा राउंड होगा, द नंबर ऑफ द राउंड वी डोंट नो, that it is first round or second round or third round, that we'll have to discover later. We'll have to do some more analysis to get to that decision. But we know that there are two biddings will be like this, L L L L and H L L L. ठीक है। नाउ एक में ए को 2 पॉइंट आया है, ये हमें पता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक 3 वाला तो हो गया, 1 वाला भी हो गया, एक 2 वाला बचा हुआ है। सो एक 2 वाला जो बचा हुआ है, तो इसमें इसको 2 आएगा, ये हमें पता है। तो देखिए 3 1 4, 4 और 2 6, 3 1 4 2 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप किसी और का भी एनालाइज कीजिए, जैसे डी का करते हैं। डी को कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट में से -1 और +1, -1 और +1 हो गया तो 0 हो गया। तो चाहिए 2 टोटल, यानी कि डी को इस राउंड में कितना आया होगा, 2 आया होगा। इसको भी 2 आया होगा, तभी तो होगा ना। सिमिलरली इसका भी देखिए -2 है, तो -1 और +1 कितना हो गया, 0। और टोटल है -2, इसका मतलब है कि थर्ड राउंड में इसको कितना आया होगा, -2 आया होगा। ठीक है। सिमिलरली बी का भी देखिए, -1 और +1 0, और है टोटल -2, इसका मतलब इसको भी कितना आया होगा, -2। सो 2 -2 -2 2, ये कब होता है, चेक कर लेते हैं। तो ये होता है यहाँ पे एच एच एल एल में 2 2 -2 -2, देख सकते हैं ना, 2 2 -2 -2। वंडरफुल। सो ये होगा जब जिसको एच होगा उसको 2 आएगा, जो एच होगा उसको 2 आएगा, और जो लो होगा उसको -2 आएगा। सो ये हमारी बिडिंग हुई। पहले 3 राउंड की बिडिंग तो आपको क्लियर कट पता चल गई। यहाँ पे देखिए मैच भी कर रहा है ना, सारे स्कोर का सम यही आ रहा है, 3 1 4 2 6, -1 +1 -2 इज -2, -1 +1 0 0 -2 इज -2, -1 +1 इज 0 0 +2 इज 2। मिल रहा है, सारे मिल रहे हैं हमारे, तो ये तो हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा बिडिंग पहले राउंड में हुआ है, कौन सा बिडिंग सेकेंड राउंड में हुआ है, कौन सा बिडिंग थर्ड राउंड में हुआ है। तो वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा यहाँ से। डी का सेकेंड राउंड का स्कोर से ज्यादा है डी का थर्ड राउंड का स्कोर, सॉरी कम है डी का से ज्यादा है डी का थर्ड राउंड का स्कोर, और डी के थर्ड राउंड के स्कोर से ज्यादा है डी का फर्स्ट राउंड का स्कोर। तो डी का स्कोर क्या क्या है, अभी देखा था, डी का स्कोर है -1 1 और 2। तो -1 और 2 को हमको कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। क्या क्या नंबर्स है, नंबर्स है -1 1 और 2। तो 2 सबसे बड़ा, उससे छोटा 1, उससे छोटा -1, 2 सबसे बड़ा, उससे छोटा 1, उससे छोटा -1। यानी कि डी का सेकेंड फर्स्ट राउंड में क्या होगा, डी का फर्स्ट राउंड में 2 आएगा। डी का फर्स्ट राउंड में 2 आएगा, इसका मतलब कौन सा राउंड है वो, ये वाला राउंड, यानी एच एल एल एच। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, ये है एच, ये है एल, ये है एल, ये है एच। यहाँ मिल गया 2 पॉइंट्स, यहाँ हो गया -2,
यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -2। वंडरफुल। सेकेंड राउंड में डी को कितना आया है? -1। डी को -1, तो -1 इसमें है, यानी कौन सा है? HLLL। बहुत बढ़िया, HLL और L। तो ये हो जाएगा +3, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये भी हो गया -1। ठीक है, ओके। और एक और बच गया, कौन सा? LLL और L वाला है, ये वाला बच गया तीसरा राउंड। तो तीसरा राउंड वही होगा, L L L और L। पॉइंट कितने कितने? 1 या +1 या 1, एक ही बात है। 1 1 1 और 1। पहला 3 पॉइंट तो रिजॉल्व हो गया। वी हैव नो क्लियर द फर्स्ट 3, नो राउंड बिडिंग, so we know it's almost certain। बचा क्या? 4 5 6। 4 5 6 में से एक हमें पता है, क्या है? HHHH। क्या है? HHHH, ये तो पता है। और हमको ये भी पता है, नो, एक तो HHHH ही है। हमें ये भी पता है कि ए का, ए ने हाई बिड किया और बाकी ने लो बिड किया, ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार। अभी हम लोगों ने उसमें से बस एक ही लिया है। देखिए, HLLL, ए को +3 मिले, ऐसा एक ही ओकेजन है। तो ऐसा एक ओकेजन और होगा, यानी कि यहाँ पे HLL और L वाला +3, -1, -1 और -1, ऐसा एक बिडिंग ये भी हुआ होगा। तो 2 बिडिंग मिल गया। तो अब चेक कीजिए, ए का स्कोर पहले चेक करते हैं। ए का स्कोर कितना हो रहा है? 6 - 1 कितना हो गया? 5। 5 + 3 कितना हो गया? 8। लेकिन 8 है नहीं, कितना है? 7 है, तो एक घटाना पड़ेगा, यानी कि एक राउंड में ए का स्कोर -1 भी आएगा। ए का स्कोर -1 भी आएगा। सिमिलरली बी का चेक करिए, -2 एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड। -2 -1 कितना हो गया? -3। -3 -1 कितना हो गया? -4। लेकिन है कितना? -1। सो -4 से -1 कब आएगा? जब +3 होगा। ग्रेट। सो यहाँ पे क्या आएगा? +3। अब +3 तो एक ही तरीके से आता है, अभी देखा था। +3 कब आता है? +3 आता है जब HLLL होता है, यानी जो बिड करेगा हाई और बाकी बिड करेंगे लो, तो जो हाई बिड करेगा उसको क्या मिलेगा? +3। इसका मतलब है कि यहाँ पे H बिडिंग हुई होगी, यहाँ पे L, यहाँ पे L और यहाँ पे L, तभी हो पाएगा। अब बाकियों का भी चेक करना होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए, C का -2 है, -2 -1 -3, -1 -1 -3 -1 -4 -4 -1 -5, -5 है भी, -5 है भी। D का भी चेक कीजिए, एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड 2 है, 2 -1 1, 1 -1 0, 0 -1 -1 है भी। वंडरफुल। तो हमें ये पता चल गया कि इस 4 5 6 में जो बिडिंग होगी वो ऐसे ही होगी, लेकिन इनका सीक्वेंस नहीं पता है। मतलब कौन सा चौथा राउंड है, कौन सा पांचवा राउंड है, कौन सा छठा राउंड है, दिस वी डोंट नो। वी कांट नो ascertain दैट, we can't fix that, but we know these 3 rounds have happened, which the number associated with that round is not known. I mean, as to round 4 or round 5 or round 6, that we don't know, but how the bidding has happened, that we know. So in no particular order, we can say it is L H L L. So you have -1, 3, -1, -1, and then this one H H H H. So H H H and H. So यहाँ पे आएगा -1 -1 -1 -1, and then lastly this one HLLL. So HLLL. So this is +3 -1 -1 -1. Sorry, -1. Now this scoring, this type of bidding, ticks all the boxes. Everything is falling in place. बस इसमें हमको एक चीज नहीं पता चला है, और वो है कि ये जो 3 बिडिंग हुई है 4 5 और 6 राउंड में, इसमें से ये चौथा है या पांचवा है या छठा है, मुझे नहीं पता। ये भी फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स नहीं पता, ये भी नहीं पता। सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर ये हमारा बिडिंग हुआ है फोर्थ फिफ्थ सिक्स राउंड में। एग्जैक्टली हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फोर्थ है, कौन सा फिफ्थ है, कौन सा सिक्स है।
So this much we can analyze from the data given. Now let us look at the question. क्या कहता है? What were the bids of A, B, C, D respectively in the first round? Let us see. फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है? HLLH, हाई लो लो हाई, ठीक है, हाई लो लो हाई, थर्ड ऑप्शन। वेरी, हाँ, एक बार डेटा एनालाइज हो गया तो क्वेश्चन का आंसर करना कुछ नहीं है। सेकेंड, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड अरुण बिड हाई? ए ने कितनी बार हाई बिड किया? चेक कीजिए। अरुण का हाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार किया है। सो द आंसर इज 4। देन इन हाउ मेनी राउंड्स डिड बी बिड लो? बी ने कितनी बार लो बिड किया? चेक कर लेते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, चार बार किया है। सो बी ने भी चार बार लो बिड किया है। देन थर्ड वन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड ऑल प्लेयर्स मेक आइडेंटिकल बिड्स? यानी सभी ने हाई किया है चाहे सभी ने लो किया है। चेक कर लीजिए। सभी ने लो किया है एक बार, ये वाला, एंड देन सभी ने हाई किया फिफ्थ राउंड, या फिफ्थ तो नहीं है, कोई भी एक राउंड, चार, चौथे, पांचवें, छठे में से कोई भी राउंड, तो हाई 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 एक हो गया, लो 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 एक हो गया, तो एक और एक दो बार। So the answer is 2. So these three were टीटा क्वेश्चंस। एक आपका एमसीक्यू था, तीन आपके टीटा हो गए, चार क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन बचा हुआ है। इन हाउ मेनी राउंड्स डिड डी गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट? डी एक पॉइंट गेन कितने राउंड में किया? यहाँ तो -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो एक मिल गया। -1 -1 -1 तो और नहीं है, एक ही है, कौन सा? थर्ड राउंड प्लस, एक ही राउंड ऐसा है। सो अगेन दिस वाज अ टीटा क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? 1 राउंड। लास्ट वन, in which of the following rounds was Arun definitely the only player to bid high? हमें ये पता है कि अरुण ओनली प्लेयर टू बिड हाई है, ऐसा दो राउंड हुआ है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अरुण ओनली प्लेयर टू बिड हाई, बाकी लोग लो बिड किए हैं, ऐसा कितनी बार हुआ है? दो बार। तो बोलता है ऐसा डेफिनेटली किस राउंड में हुआ है? तो ऐसा डेफिनेटली सेकेंड राउंड में हुआ है। सी, हाई हाई लो लो लो, ठीक है, लेकिन दूसरा जो हाई लो 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 है, ये वाला सिक्स्थ, ये हमें पता नहीं है कि ये छठा राउंड है या पांचवा राउंड है या चौथा राउंड है, तो इसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, बट हम सेकेंड राउंड के बारे में डेड श्योर है कि अरुण इज द ओनली प्लेयर टू बिड हाई, ऑल अदर्स हैव बिड फॉर लो, ठीक है। सो द आंसर इज सेकेंड राउंड, द आंसर इज सेकेंड। Beautiful set from games and tournament, can be intimidating, can be time consuming in exam, especially if you are a student who have not practiced these types of question or a student who does not feel these types of questions comfortable. यहाँ पे क्या करना था? We had to play with numbers, we had to give numbers, assign numbers at different places. There was a matrix, it was a 4 cross 6 cross 3 matrix, so 18 numbers were to be put there, और ताकि सारा इंफॉर्मेशन जो है वो उसके हिसाब से हमको सारे पॉइंट्स 18 जगह पे नंबर्स डालने थे। नहीं, देखिए 18, ये कितना था? 4 क्रॉस 6, 24 नंबर्स, वी हैड टू पुट 24 नंबर्स हियर। तो अगर आप ऐसे नंबर्स के साथ प्ले करने में कंफर्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, आपसे नहीं भी हो पाएगा एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखा है तो आपके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप नंबर्स के साथ प्ले करने में कंफर्टेबल नहीं है, चीज़ों को मैट्रिक्स में नंबर्स फिक्स करने में कंफर्टेबल नहीं है, इफ यू आर नॉट comfortable with while there are multiple constraints given, then probably this was not your cup of tea, and that is why we say practice variety of questions, because if you don't practice variety of questions, no, you'll always find questions challenging in CAT, because CAT will not give you very simple question in DIR. Therefore it is very important for us to practice CAT level questions and practice variety of questions, okay? Because the more you practice, the more you are trained for handling that unseen question that cat might throw at you, cat will throw at you, okay? So that's all as far as this video is concerned. We have covered all the questions of slot 3 DILR and all the questions of quants also of slot 3 cat 2020, ठीक है। तो ये स्लॉट मैंने दिया था, तो इसके क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल थे, तो मैंने आपको सभी का सॉल्यूशन भी दिया। I'm trying to get slot 2 and slot 1 questions also. Once I get my hands on that, we'll discuss those, or we'll post the solution of those also for all of you to practice and learn from it, okay? In the meantime, I'll continue posting my conceptual videos. We have covered everything in numbers, we have covered most of the part of
geometry, only some bit of some practice questions of circles, and no mensuration part is left. Once that is done, we'll be through with no geometry also. So see you in the next video with some more interesting no lessons and questions and practice questions. Okay, till then, no best wishes from my side for your preparation. Cheers.